Assalamu alaikum. The remaining aspects of the cardiac failure we are going to discuss today, and they are Assalamu alaikum. Now let's study the cardiac reserve, which is actually the maximum capacity in percentage. आपने percentage का लफ्ज़ भी याद करना है और capacity का भी. The maximum capacity in percentage to increase the cardiac output above the normal. And this is called cardiac reserve, and you see 5 liters per minute is the normal value. Point A is the point where you are having a normal cardiac output. In a healthy young adult, the cardiac output can be increased by 300 to 400%. The cardiac output can be increased by 300 to 400% above normal. This means that this 5 liters is the normal. So if you get 5 liters more, that would be 100% increase above normal. If you get 15 liters per minute, that would be 200% above normal. So in a normal, healthy young adults, if you do severe exercise, the cardiac output can increase up to 300 to 400% above normal. In case of athletes who are trained for exercise, they get 500 to 600% increase in the cardiac output on demand above normal. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ज़रूरत है, एक्सरसाइज हो रही है, तो एथलीट्स में 500 to 600% increase occurs in the cardiac output above normal. तो अब आपका जो ये था 5 liters, that was 1. 10 liters is 100% above normal. 15 liters is 200% above normal. So what would be 300%? That is 20 liters per minute. And 400% is 25 liters per minute. And 500% is 30 liters per minute. And 600% is 35 liters per minute. So from 5 liters per minute to 35 liters per minute is the capacity, maximum capacity that can be achieved. Increase in the cardiac output, maximum capacity in percentage is 600% or 35 liters per minute of cardiac output. In old age, you can get 200% increase in the cardiac output, and in case of severe heart failure as well, the maximum you can get is 200% increase in the cardiac output if required. इसका मतलब ये है कि अगर आप वीनस रिटर्न ज़्यादा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका इतना बढ़ जाए. 150% in the transplanted heart. ये मैंने आपके लिए क्यों लिखा है, अब आप मुझे याद करके बताएं कि what was transplanted heart. Transplanted heart means that you cut the great vessels. जो pulmonary veins आ रही हैं lungs से वो काटी, जो pulmonary artery जा रही है lungs को वो काटी, जो एओर्टा निकल रही है हार्ट में से वो काटी और सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा काट ली. तो वो जो आपका है इंक्रीज, दैट इज वो जो आपका कटिंग है उसकी वजह से आप हार्ट निकाल लेते हैं, नर्व्स तमाम काट देते हैं. अब आप जाके जब नए बॉडी में ये हार्ट जोड़ेंगे तो एओर्टा को एओर्टा से स्टिच करेंगे, सुपीरियर इंफीरियर वीना केवा को अपनी जगह पर स्टिच करेंगे, पल्मोनरी आर्टरीज को स्टिच करेंगे, लेकिन आप नर्व्स को नहीं जोड़ेंगे. तो ट्रांसप्लांटेड हार्ट में जो नर्व्स हैं वो कटी हुई होती हैं, और उसमें आप देखेंगे कि मैं जो आपके लिए डायग्राम लाई हूँ, दिस इज इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट अप टिल 13 लीटर्स पर मिनट. ये तकरीबन 12.5 लीटर्स पे 150% बन जाते हैं. इसका मतलब ये है कि ये जो हार्ट है इसमें आपके पास एज यू इंक्रीज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीजेज एंड देन रीचेज अ प्लेटू एट 150% अबव नॉर्मल. ये हमने जो प्लेटू है एक नॉर्मल हार्ट में विदाउट एनी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और विदाउट एनी पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन दिखाया है. तो दिस इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट इन दिस slide when you are seeing it. This red curve is of a normal heart, and
if it is not showing you any sympathetic stimulation or parasympathetic inhibition, actually it is the Frank-Starling's law which gives it the advantage of increase in the cardiac output in a transplanted heart, कि वहाँ पर कोई नर्व्स नहीं होती लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कार्डिक आउटपुट सिर्फ वीनस रिटर्न इंक्रीज करके इतना बढ़ाया जा सकता है. So the factors that decrease the cardiac reserve are those factors which are causing the cardiac failure, and these are ischemic heart disease, प्राइमरी मायोकार्डियल डिजीज, इसका मतलब है मायोकार्डाइटिस किसी भी किस्म का या कार्डियोमायोपैथी किसी भी वजह से हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी दैट अफेक्ट्स द कार्डियक मसल, और इसमें आप बेरी जिसमें विटामिन B1 डेफिशिएंसी है वो बताएंगे, फिजिकल डैमेज टू द मायोकार्डियम, दिस इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड वेल्वुलर हार्ट डिजीज जिसकी वजह से आपके पास पेशेंट को जो पुशिंग द ब्लड आउट ऑफ अ चैम्बर मुश्किल हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो कार्डियक फेलियर कॉज करती हैं. Coming to the diagnosis of low cardiac reserve, we do it by exercise tolerance test. आपने ट्रेडमिल्स देखी हुई है, नहीं देखी हुई तो जाके फिजियोलॉजी लेबोरेटरी में पढ़ी है वो देख लीजिएगा. द पर्सन्स विद लो कार्डियक रिजर्व डू नॉट एक्सपीरियंस मेजर सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. जिस शख्स के अंदर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है और वो 100% कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकता है किसी ज़रूरत पड़ने पर, वो जब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा उसके पास कोई ऐसा सिम्टम्स साइंस नहीं होंगे जिनसे पता चले कि इसको कोई हार्ट डिजीज़ है अभी. A diagnosis of low cardiac reserve usually can be made by asking the person to exercise. आप उसे एक्सरसाइज कराएं, पहले हल्की स्पीड पर करवाएं, फिर और ज़रा तेज़ स्पीड पर करवाएं, फिर और तेज़ स्पीड पर करवाएं, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज करवाना शुरू करें. अगर आप किसी आदमी को ऑन अ ट्रेडमिल और बाय वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एक और बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, या वो करवाएं या फिर ट्रेडमिल करवाएं, तो इसके ज़रिए आप कार्डियक रिजर्व नॉर्मल है या हार्ट डिजीज़ है कि नहीं वो पता कर सकते हैं. The small cardiac reserve is used up by increased workload on the heart. अगर किसी शख्स के अंदर कार्डियक रिजर्व कम है तो वो जब आप वर्कलोड हार्ट में बढ़ाएंगे तो वो खर्च हो जाएगा. आप कार्डियक रिजर्व जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकता था बॉडी उतना तो बढ़ गया, और फिर उसके बाद अगर आप वर्कलोड और इंक्रीज करेंगे, ट्रेडमिल की स्पीड और इंक्रीज करेंगे, देन द कार्डियक आउटपुट फेल्स टू राइज हाई एनफ टू सस्टेन नॉर्मल कार्डियक फंक्शन. तो फिर नॉर्मल कार्डियक फंक्शन पूरा नहीं हो सकेगा और जो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे वो ऐसे हैं. So the acute effects of a low cardiac reserve on exercise tolerance test are immediate and sometimes extreme dyspnea. एयर हंगर शुरू हो जाती है, आपको पता है डिस्निया किसे कहते हैं, फ्रॉम द रेस्पिरेशन दैट यू हैव स्टडीड. This extreme dyspnea is resulting from failure of heart to pump sufficient blood to the tissues, thereby causing tissue ischemia. तो डिमांड आती है कि भी आप ऑक्सीजन ज़्यादा लाएं बॉडी में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करें ताकि बॉडी पे ऑक्सीजन दी जा सके. Number 2, an excessive increase in the heart rate because the nervous reflexes to the heart overreact in an attempt to overcome the inadequate cardiac output. यानी कि आपके पास अगर कार्डियक आउटपुट पूरा ना जाए लंग्स में, तो वो आपके पास कार्डियक आउटपुट अगर पूरा नहीं जा रहा है तो फिर आप किस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे. तो ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए जहाँ रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाया जाता है वहीं कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट. तो अगर एक कार्डियक आउटपुट 0.8 सेकेंड पर बीट था कार्डियक साइकिल, अब कार्डियक साइकिल 0.3 सेकंड्स पर बीट तक पहुंचा देते हैं, तो इसमें आपका एक्सट्रीम इंक्रीज इन द हार्ट रेट है. अगर आप 75 बीट्स पर मिनट पर 0.8 सेकंड्स ले रहे थे तो आपका 3 गुना ज़्यादा जब इसको बढ़ाया जाता है तो ये तकरीबन 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा तक के करीब हार्ट रेट पहुंच जाता है, बिकॉज द नर्वस रिफ्लेक्सेस टू द हार्ट are now overreacting so that you can oxygenate the blood going to the lungs in 0.3 seconds or so and then bring it back for betterment of the body. Extreme muscle fatigue, जब मसल्स को ब्लड नहीं मिलता और उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो उनके अंदर फटीग आ जाता है जिसकी वजह से एक्सरसाइज बंद कर देता है पेशेंट. Okay, now when
We know that the heart failure can cause death of the person. So how does it occur? There is acute development of pulmonary edema in the late stages of the heart failure, and this is a lethal vicious cycle. The increased blood load on the already weak left ventricle starts the vicious cycle. अब एक वीक लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें आपने जब रीनल सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन के जरिए वर्कलोड बढ़ा दिया है, वीनस रिटर्न बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से विशस साइकिल शुरू हो जाता है. तो आप देखें कि इसमें क्या होगा. बिकॉज ऑफ द लिमिटेड पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द लेफ्ट हार्ट, ब्लड बिगिंस टू डैम अप इन द लंग्स. अब लेफ्ट हार्ट में आप वीनस रिटर्न बढ़ाएं तो वो तो बाहर जाएगा नहीं, तो अब वो लंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा. डैम का पता है ना क्या होता है. दिस एक्स्ट्रा ब्लड रेजेस पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर. लंग्स के अंदर पानी ज्यादा हो गया कैपिलरीज में, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा. इससे हम पल्मोनरी प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपका जो फिल्टरिंग फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है. अ लिटिल फ्लूइड बिगिंस टू ट्रांसुडेट इनटू द लंग टिश्यूज एंड द एल्वियोलाई. This is called pulmonary edema, and this pulmonary edema in the alveoli and the tissues diminishes the PO2 of the blood. अब alveoli के अंदर जो respiratory membrane है that has been thickened due to pulmonary edema. अब उसमें exchange of gases में ऑक्सीजन का exchange जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो blood oxygenate होकर left heart को जा रहा है उसमें PO2 कम होता है. This decrease in the PO2, that is hypoxia, is also going to the coronary arteries, which needs more oxygen, and this is getting even less than normal oxygen. This hypoxia further weakens the heart and causes peripheral vasodilation. हार्ट में ये वीकनिंग ऑफ द हार्ट करेगी और ब्लड वेसल्स के अंदर हाइपोक्सिया जो है दैट इज अ मेजर फैक्टर कॉजिंग लोकल वेजोडाइलेशन. So this is what will be happening in acute pulmonary edema, and we are continuing it on the next page. Now the peripheral vasodilation of the whole body further increases the venous return of the blood from peripheral circulation. तो क्या बना कि increased venous return आ गया. अब increased venous return पहले जो आ रहा था वही काफी नहीं था. अब आपके पास जो increased venous return आया है that is going to the right ventricle, and the right ventricle is healthy, so it is going to pump this blood into the lungs. अब लेफ्ट लंग से बाहर जा नहीं रहा तो बैक प्रेशर पड़ रहा है लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वीनस रिटर्न. तो हो गया क्या, इंक्रीजेस द डैमिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स, लीडिंग टू स्टिल मोर ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड, more pulmonary edema. This is causing more arterial desaturation, more venous return, and so forth. This is the vicious cycle that is established, and once this vicious cycle has proceeded beyond a certain point, it will continue until the patient dies or you do some heroic measures. So what are the heroic measures which must be given to the patient immediately are? So these are the heroic life-saving measures to be started immediately to break this vicious cycle. Number 1, putting tourniquets on both arm and legs to decrease the venous return so that the workload on the left side of the heart is decreased. अब आप ये देखें कि पहले ज़माने में वीनी सेक्शन करते थे. वीनी सेक्शन का मतलब है कि कोई एक वेन जो है ना उसमें से ब्लड ले लेते थे. तो आप ये भी कर सकते हैं कि टॉर्निकीज जो है बोथ आर्म्स एंड लेग्स पर लगाएं ताकि ब्लड जो है वो वापस हार्ट में ना जाए. ये तो इमीडिएट काम है. उसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा ब्लड उस बंदे से डोनेट करवा लें 250 मिलीलीटर्स और मे बी 500 मिलीलीटर्स, और उससे उसका जो लोड है वीनस रिटर्न का वो कम हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. नंबर 2 इज एडमिनिस्ट्रिंग. जोंक लगाना शायद आप में से किसी ने सुना हो, नहीं तो शायद आप जिंदगी में बाद में किसी वक्त सुने. तो जोंक लगाने का मतलब है कि लीचेस जो हैं उन्हें वेन्स के साथ लगा दिया जाता था. वो वेन्स को पियर्स करके खून चूसना शुरू कर देती थी और फुट बहुत बड़ी फूल जाती थी और फिर फूल कर गिर जाती थी और वो जो है वो जगह वहां पर सील कर देते थे वेन की. तो ये वीनस रिटर्न डिक्रीज करना एक पुराना तरीका है जो कि ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करता है. एडमिनिस्ट्रिंग अ रैपिडली एक्टिंग डायूरेटिक, लेसिक्स या फ्रूसेमाइड. लेसिक्स या फ्रूसेमाइड वो डायूरेटिक है. डायूरेटिक का मतलब होता है अ ड्रग दैट इंक्रीजेस द यूरिन आउटपुट. ये बहुत तेजी से
आधे घंटे के अंदर अंदर ये यूरिन आउटपुट बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर देती है 20 मिनट में। और अगर पेशेंट के पास इतना टाइम हो तो फिर वो पहले आपने टॉर्निक ही अप्लाई की, उसके बाद आपने फॉरन डायूरेटिक जो इंट्रावीनस दे दिया, तो उससे रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड इन फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी होगा और उसकी वजह से पेशेंट जो है उसका वर्कलोड, उसका वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। नंबर 3 इज गिविंग प्योर ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू रिवर्स द ब्लड ऑक्सीजन डिसेचुरेशन। अब आपने एक तरफ पल्मोनरी एडिमा कम करना है बाय गिविंग डिक्रीजिंग द वीनस रिटर्न, दूसरी तरफ आप ऑक्सीजन सिलेंडर से 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। अब आजकल लोग घर में भी छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं सो दैट दे कैन बी हेल्प्ड आउट, नहीं तो पहले जो लोग थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे इस कंडीशन में। तो अब ये है कि ब्लड ऑक्सीजन डिसेचुरेशन को अवॉइड करने के लिए हार्ट डिटीरियोरेशन और पेरिफेरल वेजोडाइलेशन जो उसकी वजह से हो जाती है, उसको मजीद अवॉइड करने के लिए यू गिव प्योर ऑक्सीजन टू ब्रीथ सो दैट यू कैन ब्रेक द विशस साइकिल। इसके अलावा रैपिडली एक्टिंग अ कार्डियोटोनिक ड्रग सच एज डिजिटैलिस टू स्ट्रेंथन द हार्ट। डिजिटैलिस जो है वो हार्ट रेट को कम करती है, हार्ट के मेटाबॉलिज्म को कम करती है, जिसकी वजह से हार्ट जो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज हार्ट रेट की वजह से इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड में था, तो वो जो डिजिटैलिस है वो इन कामों को कम करके ऑक्सीजन डिमांड कम करती है और उसकी वजह से डिटीरियोरेशन ऑफ द हार्ट कम होती है। रादर यू कैन से स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हार्ट हो जाती है। Now, the treatment of the heart failure is aimed at improving the cardiac contractility, treating the symptoms and decreasing the pre and after load on the heart. तो सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? उसमें पहला सिम्टम तो ये होता है कि पेशेंट जो है वो फालतू एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो दूसरा उसका सिम्टम ये होता है कि ज़रा सा उसे एक्सरसाइज करनी पड़े, यानी कि बाथरूम में ही बाज़-औक़ात अगर स्ट्रेन करना पड़ जाए तो हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज़ हो जाता है और इवन एंजाइना का पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके अलावा स्वेलिंग होती है हैंड्स एंड फीट में, लिवर एनलार्जमेंट भी हो सकती है, तो बहुत सारे और हैं, लेकिन फ़िलहाल हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होना, पाँव में एडिमा नज़र आना और डिपेंडेंट एडिमा इसको कहते हैं, और इसके साथ साथ अगर एंजाइना का पेन हो जाए तो यू से दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर जो उसी वक्त आपको ट्रीट करने होते हैं। डिक्रीजिंग द प्री एंड आफ्टर लोड ऑन द हार्ट, इसका मतलब है कि वर्क लोड ऑफ द हार्ट को आप कम करें। द मोस्ट इफेक्टिव इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब ये आपका जो है वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को रोकेगा। तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को रोकने के लिए आप एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन जो बन चुकी है उसको आगे से ब्लॉक करता है, उसको काम नहीं करने देता। तो एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये दोनों जो हैं आपके वो भी वही काम करते हैं, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को रोकते हैं। और एक और चीज़ है और उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगी तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट एक्सेसिव अमाउंट्स में होगा भी नहीं, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से एल्डोस्टेरॉन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी आप रिसेप्टर ब्लॉकर, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर देकर आप उसको एक्टिविटी को कम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एल्डोस्टेरॉन ने भी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करनी होती है। तो आप ये देखें कि एस इनहिबिटर्स हों, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों या एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों, तमाम के तमाम जो हैं वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को कम कर रहे हैं और उसकी वजह से आफ्टर लोड जो है वो कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स डिक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। व्हाट इज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी? मॉर्बिडिटी का मतलब है कि पेशेंट इतना ज़्यादा बीमार है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता, और मोर्टेलिटी इज ऑफ कोर्स द डेथ ऑफ द पेशेंट। इन दोनों को हेल्प आउट करता है, कम करता है बीटा ब्लॉकर। नाउ कमिंग टू द प्री लोड, पहले हमने आफ्टर लोड यानी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही थी तो उससे आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब आप जो है वो प्री लोड यानी वीनस रिटर्न कम करेंगे। उसको कम करने के लिए आप देते हैं वेजोडाइलेटर्स जो कि नाइट्रेट्स और हाइड्रोलाजीन है। वीनो डायलेशन जो हो जाती है उससे वीनस कैपेसिटी बढ़ जाती है और ब्लड जो है वो वेन्स में पूल करता है रादर देन पूलिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल और इनटू द लंग्स। डायूरेटिक्स देते हैं आप टू रिड्यूस द फ्लूइड ओवरलोड बाय द हार्ट। डिजिटैलिस देते हैं आप टू
जिसका नाम डाइजॉक्सिन है, जो एक ज़्यादातर लोग जानते हैं जिस नाम को, वो डाइजॉक्सिन है। इससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो जमा हो जाती है और उसकी वजह से सिस्टोलिक डिस्फंक्शन बेहतर होता है। और इसके साथ साथ डिजिटलिस जो है वो वेंट्रिकुलर रेट को कम करता है इन पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन याद है आपको? एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हमने आगे पूरा बात की थी वो ये थी कि 30% डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन causes decreased venous return to the heart, and this decreases the cardiac output, and this causes the cardiac failure. तो अब आप ये देखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन अगर फास्ट है भी तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी जो जो उसमें से गुजर जाता है एवी नोड में से और वेंट्रिकल तक जो इम्पल्स भी पहुंच जाती है वो फास्ट वेंट्रिकुलर रेट देती है। तो जब आप एवी नोड को ब्लॉक करेंगे तो फास्ट वेंट्रिकुलर रेट कम हो जाएगा, तो फिर उसकी वजह से वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह भरेगा इन वन टाइम और ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकेगा। तो कार्डियोटोनिक ड्रग्स और इसके अलावा डाइजॉक्सिन का एक और काम ये है कि वो वेंट्रिकुलर रेट को कम करके फिलिंग ऑफ द हार्ट को बेहतर करती है। तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन जो लेस फिलिंग ऑफ द हार्ट से फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ काम नहीं कर रहा था वो बेहतर हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट बेहतर कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो दैट वाज अबाउट द कार्डियक फेलियर। एक और डिजीज थी कार्डियक हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट विद यू। सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि कंजेनिटल hypertrophy of the heart is not uniform all over the heart left ventricle, rather इसमें aortic जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, तो एओटिक स्टीनोसिस की कंडीशन बन जाती है। और इसके अलावा इसका जो कंडक्टिंग टिश्यू थी उसकी और मायोसाइट्स की जो लाइनें थी जिस तरीके से अरेंज हुई हुई थी वो डिसरप्ट हो जाती हैं। तो कंडक्टिंग डिसऑर्डर भी इसमें साथ होता है, एरिथमियाज भी इसमें साथ होते हैं। और आप जानते होंगे यंग एथलीट्स समटाइम्स डाई व्हेन दे आर गोइंग टू हैव, भागना दौड़ना एकदम शुरू करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, जबकि पहले से पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई डिजीज भी थी। तो ये वो लोग हैं जो कि कार्डियक फेलियर में जाते हैं ड्यू टू अ जेनेटिक कंजेनिटल डिजीज। ओके, दैट्स ऑल फॉर कार्डियक फेलियर।